character. Synonyms of the word narrow minded, orthodox, based. Important word BIASED based, bigot, zealot, and extremist. Now, antonyms of the word liberal, tolerant, unprejudiced, and moderate. Now, next, fantastic. 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 Shandar. Synonyms of the word fanciful, splendid, terrific, marvelous, awesome. Antonyms of the word ordinary, normal, customary, common. Now, next word fantasy. 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 Kalpana. Synonyms of the word imagination, vision, image, visualization, fancy, delusion, apparition. 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 This word you can find in a Macbeth. And illusion. Now, antonyms of the word reality, fact, truth, actuality, existence. Now, far-fetched. Important word FARFETCHED. Far-fetched, अव्यवहारिक, अवास्तविक. Now, synonyms of the word dubious, also important word DUBIOUS, dubious, and improbable, flimsy, flimsy, important word FLIMSY, flimsy, अव्यवहारिक, unreal. Next, unlikely and unplausible. Next, antonyms of the word likely, probable, possible, conceivable. Now, fascination. 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 Akarshan. Synonyms of the word appeal, enchantment, interest, passion, obsession. Important word. And appeal also important word APPEL. Appeal means akarshan. Obsession also important word OBSESSION. Obsession. Now antonyms of the word repulsion, repulsiveness, and boredom. Boredom also important word BOREDOM. Boredom. Now fastidious. 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 Nakhrebaj. Synonyms of the word demanding, fanical, fussy, snobbish. Snobbish important word SNOBBISH. Snobbish and punctilious. Now antonyms of the word unpretentious and modest. Now next word fatigue. FATIGUE. Fatigue, thakan. Now synonyms of the word weariness, exhaustion, exertion, and tiredness. Now antonyms of the word vigor, liveliness, energy, vivacity. Important word VIVACITY. Vivacity and briskness. Also important word BRISK yani double S. Briskness. Now next fatigued. 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 थका हुआ. Now synonyms of the word weary, exhausted, enervated. Now antonyms of the word fresh, invigorated, energized, and revitalized. Now next word fearsome. FEARSOM. Fearsome, डरावना. Synonyms of the word ghastly, horrible, scary, terrible, daunting, formidable. Important word FORMIDABLE. Formidable and intimidating, spine chilling. Also most important word SPI yani spine chilling. CHILLING. Spine chilling. Now antonyms of the word comforting, soothing, and reassuring. Yes, reassuring. 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 Now next word feasible.
या फिर ASIBLE फैसिबल व्यवहारिक होने योग्य. Now synonyms of the word achievable, attainable, doable, possible, achievable, and pragmatic. Important word pragmatic, pragmatic and practical. Now antonyms of the word implausible, impassable, impossible, and insurmountable. Now next word feeble, F-double-E-B-L-E. Important word feeble, F-double-E-B-L-E. Feeble means durbal, kamzor. Synonyms of the word weak, frail, also important word F-R-A-I-L, frail, puny, infirm, and defenseless, and vulnerable, also important word P-U-R-N-E-R-A-B-L, E, vulnerable. Now antonyms of the word strong, robust, mighty, vigorous, resolute. Next one, felicity. Felicity. Felicity, param sukh, anand. Synonyms of the word bliss, gladness, joy, euphoria, ecstasy, rapture, happiness, cheerfulness, and elation. Now antonyms of the word calamity, misery, sadness, unhappiness, sorrow. Yes, next word ferocious, 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 cruel. Synonyms of the word untamed, barbarous, fierce, dangerous, savage, brutal. Yes, bestial, important word Bestial, bestial, cruel. Now, antonyms of the word gentle, innocent, civilized, benevolent, calm, sympathetic. Now, next word fertile, 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 उपजाऊ. Synonyms of the word fecund, important word Fecund, fecund, loose, Lush, and productive and productive, arable, also important word Arable. Now antonym of the word barren, infertile, sterile, and impotent. Now last word fetter, 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 bedi, janjeer, shackles, bonds, chains. Now antonyms of the word liberation, freedom. Yes, do you have any queries about this? Yes. Okay. Thank you all. Thank you. Thank you Thank very you much. so much. Most welcome, everyone. चलिए नेक्स्ट सेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम लोग, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। हम लोगों ने जस्ट वेट एक मिनट। इसे 500 रुपया और ले।
स्क्रीन विजिबल है हमारी? जी यस सर। चलिए, कहाँ तक हो गया था कल? हम लोग पढ़ रहे थे प्यूरिटन इंटरगनम, है ना? जी सर। सर यस सर। प्यूरिटन इंटरगनम पढ़ रहे थे, जिसमें जो है ये चीज हो गई थी हमारी 1649 से 1660 तक के, ये था इनका। और प्यूरिटन इंटरगनम है क्या, ये पढ़ चुके थे। ओलिवर क्रामवेल के विषय में जान चुके थे। सर हिस्टोरिकल स्क्रीन बैकग्राउंड बहुत भी पढ़ ज्यादा चुके। ब्लर है। अब बताइए, कुछ फायदा हुआ? जी जी सर, हुआ थोड़ा। चलिए देखते हैं, पढ़ाते पढ़ाते हो सकता है कि सही हो जाए। हिस्टोरिक बैकग्राउंड भी पढ़ चुके थे। इसका प्रोटेक्टरेट में कौन कौन से लोग आते हैं? प्रोटेक्टरेट में जो लॉर्ड प्रोटेक्टर के रूप में किसको किसको जाना जाता है? जो लोग कल का सेशन जो है ज्वाइन करे थे वो बता सकते हैं। Oliver Cromwell and Richard प्रोटेक्टर। Cromwell both known for this. ओलिवर क्रॉमवेल यस। हाँ हाँ, अच्छा, कौन जो है इनको नियुक्त करता है? It's पार्लियामेंट ऑफ selected by इंग्लैंड। पार्लियामेंट नियुक्त करता है, सही। अच्छा, इसमें भी एक जो है क्वेश्चन एक बनता है कि एक सक्सेसफुल लॉर्ड प्रोटेक्टरेट किसे माना जाता है, और अनसक्सेसफुल, हालांकि अनसक्सेस का नहीं, सक्सेस का ही बना है, तो सक्सेस का अगर बनेगा तो किसे मानेंगे सक्सेसफुल का? क्रॉमवेल, ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल। ओलिवर क्रॉमवेल। और अनसक्सेसफुल इसके बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल। रिचर्ड क्रॉमवेल। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन हालांकि आप लोगों को मिला होगा कि किससे जो है चार्ल्स सेकंड जो है सत्ता हासिल करते हैं, मतलब जो मोनार्की स्थापित होती है तो किसके जो है रेगुलेटरी को जो है डिस्ट्रॉय करके जो है मोनार्की स्थापित की जाती है साथ में? ओलिवर क्रॉमवेल, चार्ल्स फर्स्ट, रिचर्ड क्रॉमवेल। रिचर्ड क्रॉमवेल सर, रिचर्ड क्रॉमवेल सर। रिचर्ड क्रॉमवेल, हाँ, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा माइन्यूट क्वेश्चन बनता है। वहां पर ओलिवर क्रॉमवेल दिया और ओलिवर क्रॉमवेल बड़ा फेमस नाम है, तो जनरली लोग ओलिवर सर क्रॉमवेल ही लगा के आते हैं। ये माइनर कैरेक्टर था, ये 2 साल ही रहा था, इसलिए इसका ज्यादा जिक्र नहीं होता। ओलिवर क्रॉमवेल को ज्यादा प्रोमिनेंट रखते हैं। जी जी जी। अब जो है आगे का जो हमारा टॉपिक था वो था हु आर द मेजर राइटर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ पीरियड। इसके मेजर राइटर सर, कौन? तो सबसे पहले जो है हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोज राइटर कौन कौन थे। प्रोज राइटर सबसे पहले देखेंगे। प्रोज राइटर में एक बहुत ही फेमस नाम आता है थॉमस होब्स। हालांकि जो है ये सारे राइटर हमें पढ़ना इसलिए जरूरत है एज वाइज कि यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि व्हिच राइटर इज बिलोंग टू व्हिच एज। इस तरह के जब क्वेश्चन बनते हैं तो वो क्वेश्चन हम जब तक के एज के सभी राइटर्स नहीं पढ़े होंगे तब तक के चीजों को, वो क्वेश्चन को कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थॉमस होब्स, हालांकि हमारे टीजीटी में ये प्रेस्क्राइब्ड राइटर नहीं है, लेकिन अब थॉमस होब्स से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। और जब क्वेश्चन अगर बन गया तो हम आयोग के पास चले जाए पिटीशन लेकर के, भाई साहब आपने तो गलत क्वेश्चन बना दिया क्योंकि हमारे तो ये प्रेस्क्राइब्ड राइटर ही नहीं है। तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। प्रेस्क्राइब्ड राइटर तो 4 हैं, लेकिन हमें जो उनके हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी मेजर राइटर हैं, चाहे इलिजाबेथन एज के हों और विक्टोरियन एज के, मेजर राइटर जो रिप्रेजेंट करते हैं उस एज को, उसका एक मैग्नम ओपस या उनके जो भी फेमस वर्क हैं वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं और हमें उन चीजों को केयर करना चाहिए। तो उसी के श्रेणी में हमने जो है अपने नोट्स में कुछ राइटर्स को रखे हैं यहाँ पर। उसमें पहला नाम है थॉमस हॉब्स। ये आते कहाँ पर हैं, किस एज से बिलोंग करते हैं थॉमस हॉब्स? क्यों थॉमस हॉब्स किस एज से बिलोंग करते हैं? प्यूरिटन है प्यूरिटन इंटरगनम।
सही बात, कॉमनवेल्थ कुछ भी पूछा सकता है। अगर सेंचुरी पूछ ले तो किस सेंचुरी से मिला जी, सेंचुरी अगर पूछ ले तो किस सेंचुरी से होंगे? 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और इस तरह के जब क्वेश्चन बनते तो दिमाग को हिला देते हैं। भाई साहब ये तो जो है हमने पढ़ा ही नहीं था, कैसे कैसे क्वेश्चन बना दिया, बड़ा लेवल का क्वेश्चन बना दिया। जबकि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है कि थोड़ा क्रोनिकल वे में उस चीजों को हम देखते जाएं, क्रोनोलॉजी के फील्ड में, तो चीजें समझ में आती हैं। पहली बार हमने भी हिस्ट्री जब पढ़ी तो मेरे दिमाग में ही छट के ऊपर से चला गया, लेकिन धीरे धीरे चीजों को जब आप पढ़ते जाएंगे तो दिमाग में परत दर परत जो है वो चीजें बैठती चली जाती। अब जो शुरू से साथी हमारे लगे हुए हैं, हमारे साथ इसमें ज्वाइन कर रहे हैं परमानेंट, उनको जो है इस ये क्रोनोलॉजी समझ में आ गई होगी, कब से कब तक के कौन सा एरा रहा, कौन कौन से उस एज में राइटर रहे, कौन कौन से वर्क उस एज के फेमस रहे। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जाती। अच्छा, अभी हिस्ट्री तो ये पढ़ लेंगे हम लोग, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न, अर्ली पोस्ट मॉडर्न तक के जब हम आ जाएंगे, जो अब तक के समय चल रहा है, फिर इसके बाद जो है हमें खत्म कर देंगे हिस्ट्री, भाई खत्म, आगे है नहीं कुछ इसके बाद भी हमारा ये पोर्शन खत्म नहीं होने वाला है। फिर हम जो है डिफरेंट इसके स्कूल्स पढ़ेंगे, डिफरेंट इसके मूवमेंट्स पढ़ेंगे, जहां से एक मिनिमम जो है एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, 2 से 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जैसा कि आप पिछले पेपर देख रहे होंगे, और आप जहां भी जिस भी कोचिंग से जुड़े हुए हैं, जहां पे ज्ञान ले चुके हैं पहले का, वहां भी आपको बताया गया होगा कि प्रीवियस में हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। हाँ, इसके 2010 के पहले आप देखेंगे तो हिस्ट्री से खूब क्वेश्चन बनते थे, खूब क्या मतलब 4, 5, 6 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं बड़े आराम से। लेकिन इसके बाद जो है हिस्ट्री को आयोग ने दरकिनार कर दिया। ऐसा ही किया गया था लिटरेरी टर्म्स के साथ। लिटरेरी टर्म्स को भी बहुत ज्यादा, इसके पहले के पेपर देखिए, बहुत ज्यादा आयोग ने लिटरेरी टर्म को भाव नहीं दिया इस टॉपिक, लेकिन 2021 में भाई साहब 20 से ज्यादा क्वेश्चन बना दिया। अगर ऐसा ही कुछ लॉजिक लग गया हिस्ट्री के साथ, तो जो लोग सिर्फ राइटर पे फोकस्ड हैं, जो लोग सिर्फ ग्रामर पे फोकस्ड हैं, तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो हम समय रहते इन सब चीजों को कवर कर लें। हालांकि एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनफॉर्चुनेटली एग्जाम की डेट नहीं आ रही टीजीटी पीजीटी की, लेकिन हम प्रेजेंट में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से सीख सकते हैं कि हम जो है विषम परिस्थितियों में भी कैसे जो है अवसरों को तलाशते हैं। हालांकि कुछ होगा, ये प्लेटफॉर्म, इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी की प्रशंसा या किसी की बुराई कर रहा हूँ, बशर्ते एक ये है, एक कोट है कि विषम परिस्थितियों में जो ही हम अवसर की अपने तलाश करें। तो आज की डेट में भले हमारे सामने विषम परिस्थितियां, एग्जाम की डेट कंडक्ट नहीं होगी, काफी सारे साथी जो है बैठे हुए हैं पढ़े लिख करके, लेकिन उसमें जो है हम कर क्या सकते हैं ये जरूर सोचें। हम हिस्ट्री वो ऐसे पॉइंट्स हम कवर करें इस पीरियड में जो हमको टाइम टेकिंग देते ही देखें, हमें टाइम देना ही पड़ता है, अचानक से वो चीजें नहीं कवर हो पाती। उनमें से 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटर आप कवर कर लेंगे, 5-6 क्वेश्चन राइटर के ऐसे होते हैं जो जिसपे भी भगवान का ही सहारा है, उनपे वो चाहे इतना पढ़ लीजिए, राइटर पे 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। और उनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिन गुरजम से हम लोग पढ़े हुए हैं, उनके लिए भी बड़ा मुसीबत खड़ा कर देते हैं। तो वहां पे काम करना जो है, अपेक्षा जो ग्रामर है ये टाइम टेकिंग लेता है, हिस्ट्री लिटरेरी मूवमेंट से टाइम टेकिंग लेते हैं, इन पे काम कर लिया जाए अच्छे से। तो वही एक अपना मिशन है। हालांकि अभी हम पेड में कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना भी कुछ कर रहे हैं सब ओपन सेशन में आप लोगों के साथ में है। लगातार सहयोग और ये आप लोगों का मनोबल हमारे बढ़ाता, अगर बढ़ता रहा आप लोगों से, आप बढ़ाते रहेंगे तो चीजें बहुत अच्छे से हम लोग कवर करेंगे। हिस्ट्री का एक एक पॉइंट जो है कवर करने वाले हैं, और लिटरेरी टर्म्स भी हम इतने अच्छे से लिटरेरी टर्म पढ़ेंगे, शायद आपको अगर एमएच अब्रम दे दिया जाए 600 पन्नों की किताब, जेएस कटन दे दिया जाए 1200 पन्नों की किताब, दिमाग घूम जाता है यार, कितने दिन में इसको पढ़ेंगे। अपने पास जो है जेएस कटन और एमएच अब्रम, रोज मार्फिन, ऑक्सफर्ड, तो 3-4 बुकों का एक कटर हमने बना रखा, अपना नोट्स, खुद का नोट्स, जिसको सिर्फ हमने पेड साथियों को दिया है, और उस नोट्स से हम लोग पढ़ेंगे। तो लगातार बने रहने का आपको बेनिफिट मिल सकता है, बाकी आप पे निर्भर करता है। हम पढ़ रहे हैं कॉमनवेल्थ के मेजर राइटर्स, उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोज राइटर्स की। प्रोज राइटर में जो है हमारे आते हैं, सबसे पहले जो हम नाम लिए हैं थॉमस होब्स का। थॉमस होब्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनका एक वर्क है लेवियाथन। ये लेवियाथन जनरली पूछा जाता है एग्जाम्स में, आप नेट में भी इसको देखे होंगे, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है,
और टीजीटी पीजीटी का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है लेवियाथन। लेवियाथन वर्क जो है कई जो राइटर हैं मॉडर्न एज के, विक्टोरियन एज के, उनका जो है एक मेजर सोर्स भी रहा है, इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इतने ही ज्यादा टीजीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है थॉमस होब्स कब आ रहे हैं, किस एज से हैं, तो कॉमनवेल्थ से हैं, किस सेंचुरी से हैं, 17th सेंचुरी से हैं। इनका वर्क फेमस है लेवियाथन, आता कब है 1651 में आता है। हालांकि नोट्स ये जीआईसी तक के चीजों को कवर करता है, लेकिन टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को यहाँ पर कवर करते हुए चल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा हम स्टोरीज की कवर नहीं कर रहे हैं, बस इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखते चल रहे हैं। आगे है थॉमस होब्स की यहाँ एक और चीज है कि इनकी जो राइटिंग्स थी, जो इनके आइडियाज थे, वो काफी कंट्रोवर्शियल रहे। जैसे कि जॉन मिल्टन के इस एज में काफी कंट्रोवर्शियल रहे। तो एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि जॉन मिल्टन और थॉमस होब्स में क्या सिमिलरिटीज थी, तो वो भी उनके भी बड़ा ही पोलेमिक आइडियाज रहते थे, रिवोल्यूशनरी आइडिया रहते थे। इनके भी जो है बड़े ही जो है विवादास्पद आइडिया रहते थे। तो ये जो है जॉन मिल्टन में इनमें जो है एक सिमिलरिटी पाई जाती है। अगला नाम है जेरेमी टाइलर। इनको जो है आप कमेंट्स में बहुत देखे होंगे, किसी पे कमेंट कोई किया है तो उसमें जेरेमी टाइलर जो है मिल जाएंगे। तो ये जरा क्रिटिक्स में जो है भी कंसीडर किए जाते हैं। इनका जो है अगर एज पूछ लेगा सेम वही पढ़ ही रहे हम लोग, कॉमनवेल्थ सेंचुरी जो है इनका भी 17th कंसीडर किया जाएगा। 1613 से 1667 तक के हैं। होली लिविंग एंड होली डाइंग, ये इनका बहुत फेमस वर्क है। होली लिविंग एंड होली डाइंग, ये वर्क इनका 1650 में आता है। पब्लिशिंग ईयर भी पूछी जा सकती है, लेकिन उम्मीद कम है, लेकिन ये दिमाग में रखना चाहिए हमें। कॉमनवेल्थ पीरियड के राइटर हैं, 1650 में आता है। 17th सेंचुरी का ये वर्क है होली लिविंग एंड होली टाइम। ये जो है वर्क जनरली मोर्टल एंड इमोर्टल की पर प्रीच देता है। ये नासवान और अमरण ये सब चीजों को, क्रिश्चियनिटी की बात करता है, वहां पर फेथ क्रिएट हो लोगों में, इसकी बात करता है। गॉड को लेकर के चीजें, गॉड और ह्यूमैनिटी के बीच में कनेक्टिंग के जो प्रोसेस हैं उनके विषय में इनका होली लिविंग एंड होली डाइंग वर्क जो है ये बात करता है। अगला जो है नाम आता है इजाक वाटन। इनका भी जो है आपने कई बार कमेंट्स में नाम सुना होगा। इजाक वाटन का जो बहुत फेमस वर्क है वो है द कंप्लीट एंगलर। ये मोस्ट फेमस वर्क है कंप्लीट एंगलर। कंप्लीट एंगलर जो है 1653 में आता है। इस कंप्लीट एंगलर का जो दूसरा नाम है कंटेम्पलेटिव मैंस रिक्रिएशन। कंप्लेटिव मैंस रिक्रिएशन बाय इजाक वाटन। तो 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनता है कि ये कंप्लीट एंगलर किसका वर्क है, इजाक वाल्टन का है। कंप्लीट वर्क जो एंगलर है इन विच एरा वाज रिटेन, तो कॉमनवेल्थ पीरियड, इन विच सेंचुरी 17th सेंचुरी, इन विच ईयर 1653 बाय हुम इजाक वाल्टन। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे के सारे हम कवर करते हुए चल रहे हैं। जॉन मिल्टन, इनको तो च्यूड एंड डाइजेस्ट किए बैठे ही हैं आप लोग, ज्यादा कुछ इनके विषय में यहाँ पर कवर करने की जरूरत है नहीं। 1608, 1674 जनरली इनके जो मेजर वर्क हैं पोइट और प्रोज राइटर दोनों जो है कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर हम पोइट्री की इनकी बात करें तो इनका पैराडाइज रिगेन, पैराडाइज लास्ट, सैमसंग एगनिस्ट, और प्रोज में बात करेंगे अगर तो एरोपजेटिका, और कई जो है इन्होंने ट्रैक प्रोज के लिखे हैं डिफेंस ऑफ एंग्लिकन। बाकी स्टोरी ज्यादातर आप जानते हैं। किंग ऑफ द टेन्योर ऑफ किंग मैजेस्ट्री, ये एक इनका वर्क इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 1649 में इसी वर्क के लिखने के बाद जो है इनको फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन लैंग्वेज का सेक्रेटरी जो है बना दिया गया था। ये जो वर्क है चार्ल्स फर्स्ट के बिहेडेशन को सही ठहराता है और वहां के एंग्लिकन को जो है वो डिफेंड करता है। डॉक्ट्रिना एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स, द जजमेंट ऑफ द मार्टिन ब्रूसर, टेट्राचॉर्डन, कोलेस्ट्रियन, रिटन बाय जॉन मिल्टन। ये जो है वर्क इनके जो है पूछे जाते हैं जनरली। एरोपजेटिका, अ स्पीच ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, फ्रीडम ऑफ प्रेस। जनरली यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को मिला होगा। अगर हम एज ए पोइट्री की बात करें, इस एरा के पोइट कौन कौन से थे, तो उनमें जो है सबसे पहला नाम जॉन मिल्टन का ही आता है।
और दूसरा नाम आपका अब्राहम काउली की आता है। अब्राहम काउली 2-3 तरह से जो है फेमस हैं। एक तो हम इनको पढ़ेंगे लिटरेरी टर्म्स में, इनकी क्या भूमिका टर्म्स में रहती है अब्राहम काउली की, काउलियन वर्ड वगैरह हम पढ़ेंगे वहां पर। और दूसरा ये मेटाफिजिकल पॉइंट्स जो है माने जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखिए कि कौन सा पॉइंट या कौन सा राइटर किस जो है स्कूल से बिलोंग करता है, किस भी मतलब किस तरह के जॉनरा राइटर के ऑथर के ग्रुप से वो बिलोंग करता है। ये भी 16 सेंचुरी के राइटर हैं, कॉमनवेल्थ पीरियड के हैं, बराबर यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। काउलियन जो है जो राइटिंग है वो जॉन डन से जो है ज्यादा इंस्पायर्ड है, और ये जो है मेटाफिजिकल कंसीट का अपने वर्क में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे। मेटाफिजिकल कंसीट क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ज्यादा विटी चीजें इस्तेमाल करते थे। डिसिमिलर, जब दो डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स की कंपैरिजन कर दी जाए तो वो मेटाफिजिक्स कंसीट हो जाता है, और कंसीट रिफर टू मेटाफिजिक्स राइटिंग। तो ये सारी चीजें जो है इनका बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा है एना एनाक्रियोटिक, इनका जो बहुत एक वर्क है, एक कलेक्शन है इनका कई पोएम्स का, मेलोडियस पोएम्स का। ये भी पूछा जाता है कि एनाक्रियोटिक किसका राय है, तो ये काउली का है। दूसरा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट इनका हो सकता है आपका द मिस्ट्रेस। द को मिस्ट्रेस जो है एक एंड्रू मार्वेल का है, और ये द मिस्ट्रेस है। तो इतना ध्यान रखिएगा, दोनों में जो है अंतर है। तो द मिस्ट्रेस अगर आ जाएगा तो काउली पे ही जाएंगे, हालांकि ये भी मेटाफिजिकल पॉइंट्स हैं और वो भी मेटाफिजिकल पॉइंट के राइटर माने जाते हैं। अगले आपके मिल जाते हैं एंड्रू मार्वेल। सबसे पहले क्वेश्चन बन जाते हैं इनका जो है ग्रुप ऑफ स्कूल का। तो ये जो है मेटाफिजिकल पॉइंट है माने जाते हैं एंड्रू मार्वेल, और ये कॉमनवेल्थ के हैं, 17 सेंचुरी की है। देखो ये मिल गया। तो टू हिज को मिस्ट्रेस, ये वर्क हम बता रहे थे, टू हिज को मिस्ट्रेस, इसकी लाइन भी पूछी जाती है। और ये लाइन इनकी जो है फिगर ऑफ स्पीच में भी आपको मिल जाएंगी, जब हम वहाँ पढ़ेंगे सारी चीजें हम कवर करेंगे। ज्यादा डिटेल में इनके वर्क और इनकी लाइंस को यहाँ इसलिए नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि ये टीजीटी में प्रेस्क्राइब्ड है नहीं, और इतना हम जानते चले कि किस एरा से है, कौन सा इनका मेजर वर्क है, और किस जो है स्कूल से बिलोंग करते हैं, हमारे हिसाब से इतना काम चल जाना चाहिए। बाकी नोट्स जो है इसमें हमने सारी चीजें शामिल कर रखी हैं अलग से। इनकी जो पोइट्री है, ज्यादातर इनकी पोइट्री के टर्म्स भी पूछ लेता है, हालांकि ये फेमस राइटर रहे हैं। और ये इसलिए भी क्वेश्चन बनता है कि ये इनके जॉन मिल्टन के जो है काफी क्लोज रहे हैं, और कंटेम्प्रेरी जॉन मिल्टन भी आपसे ये पूछा जा सकता है। और जॉन मिल्टन साहब को जब रेस्टोरेशन हो रहा था तो इजी टू वे ऑफ द कॉमनवेल्थ करके जो पैम्फलेट लिखा था जॉन मिल्टन ने, उसके बाद भी उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो फिर छुड़वाया इन्होंने था, वरना जो है जनाब का काम वहीं पर जेल में चलता रहता। तो इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका जो ज्यादातर जो इनकी पोइट्री थी उसमें पैराडॉक्स, आयरनी और विटी चीजें ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। विटी तो ये चीज दिमाग में बना लीजिए, जितने भी मेटाफिजिक्स राइटर हैं वो सारे के सारे जो है विटी चीजों को इस्तेमाल करते थे। हेनरी वागन, अगला जो नाम है हेनरी वागन, ये भी जो है मेटाफिजिक्स है। जितने मेटाफिजिक्स हैं वो सारे के सारे, एक तो पहले ऊपर हम बता ही चुके हैं सारे नाम, लेकिन ये जानते रहिए ये क्वेश्चन बना देता है, ये 4 क्वेश्चन दे देगा ऑप्शन, उसमें से बता देगा कि कौन सा मेटाफिजिकल पोएट्री से बिलोंग नहीं करता है, या 3 दे देगा अदर वाले, एक ये वाला दे देगा कि मेटाफिजिकल पोएट्री कौन सा इसमें है। हेनरी वागन, अभी तक काउली, मार्वेल और हेनरी वागन, ये दोनों लोग, तीनों लोग जो है मिल चुके हैं हम लोगों को। अगला जो है पॉइंट हमारा रहेगा व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस एरा। तो ये हम कवर करेंगे कल, क्योंकि आज टाइम जो है लगभग हो गया है, और अभी हमें ग्रामर भी नेक्स्ट टॉपिक कवर करना है। कल ये जो है हमारी एज फिनिश हो जाएगी, और हो सकता है कल ही जो है हम इसके आगे की एज को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ तक कि अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। हम 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, 1 मिनट के बाद फिर हाजिर होंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।
जी, स्क्रीन विजिबल है? जी सर। चलिए, आज जो है, कल हम लोगों ने वॉइस एंड नरेशन पे प्रैक्टिस करी थी, आज जो है हम लोग कंडीशनल सेंटेंस पे करेंगे। अभी जितने भी टॉपिक हैं, लगभग 70 से 80% टॉपिक्स पे हम लोग जो है प्रैक्टिस कर चुके हैं। कुछ एक टॉपिक बचे हैं जिनकी प्रैक्टिस हम पूरी करके फिर हम लोग जो मेजर टॉपिक है, जैसे कि ग्रामर में प्रीपोजिशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से फॉर्म होते हैं और ज्यादातर लोगों का एक्लिक सील है। इवन जो है ज्यादा बहुत ही मास्टर जो ग्रामर के कहे जाते हैं, वो भी नहीं कह सकते कि हमारा जो है प्रीपोजिशन सेक्टर जो है बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कोशिश करते हैं जितना हो सकता है उसको जो है हम लोग कवर करेंगे। आज का टेस्ट कंडीशनल सेंटेंस पे है, जितनी जल्दी हो सके आप लोग रिप्लाई करते जाइएगा ताकि विद इन टाइम जो है हम लोग काम कर सकें। एक टारगेट होता है अपना 6:05 6 बज के 10 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 बजे तक ही हमारे पास समय रहता है, 5 से 6 के बीच। तो आप लोग कॉपरेट करिए थोड़ा जल्दी से। क्या होगा इसमें? ही वंडर फॉर द मोमेंट इफ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन। इफ ही हैड मिस्टेकन, He would wonder. He would have wondered. हाँ, पर इफ है वुड है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए एक तरफ और दूसरी तरफ, जी है ना? जी। वुड है प्लस मेन He वर्ब would की have wondered. थर्ड फॉर्म। हाँ, तो यहाँ पर He would have वुड wondered. हैव वंडर्ड हो जाएगा। किस पार्ट में आ जाएगी? बी पार्ट में। बी पार्ट में। यू कैन नॉट लीड अ हेल्दी लाइफ ऑल्दो यू स्टॉप स्मोकिंग। यद्यपि का तो सेंस नहीं हो रहा, कंडीशनल है, तो अनलेस या अनटिल कर सकते हैं। अनलेस करें ज्यादा बढ़िया है, टाइम तो है नहीं तो अनटिल भी हो जाता। अनलेस हो जाएगा बहुत अनलेस सारे यू तो स्टॉप। तुम। हाँ हाँ हाँ, अनलेस हो जाएगा, अनलेस कर देंगे। किस में आ जाएगी ये? ए पार्ट में। ए पार्ट में। द मैन वुड हैव अटैक्ड, सही है, आगे थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। इफ यू वेंट If you had. If you had. इफ यू हैड गॉन होना चाहिए। If you had इफ यू gone that way. हैड गॉन होगा वेंट की That जगह way. पर। क्योंकि इधर जो है वुड हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उधर जो है हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए। किस पार्ट में आ जाएगा? इफ क्लास सी। See. When he goes on a business trip, he is usually taking his wife. When he goes, urgent है। Trip, he is usually takes होगा, When he taking goes. होगा। He is usually take. नहीं सर, taken कैसे हो जाएगा? When he Take goes से ही on होगा। a प्रेजेंट जीरो कंडीशन है, टेक सर जीरो कंडीशन होगी सर, यहाँ पे यूजली आया ना यहाँ पे, इसलिए सर टेक होगा यहाँ पे जीरो कंडीशन। when he goes on a business trip, he is usually ये टेक take होगा। his wife. Take his wife. इज भी काटना पड़ेगा ना, सर यूजुअली ही टेक्स टेक्स। क्यों होगा? अब ही के काटेंगे तो लगाएंगे। टेक would take. सही है, टेक Would ही take ही कैसे टेक कैसे? ही आएगा, टेक्स आएगा, इज नहीं आएगा। जनरली, यूजली, फ्रीक्वेंटली, जनरली, यूजली, फ्रीक्वेंटली प्रेजेंट में आते हैं, ये भी लॉजिक है। और एज नहीं आएगा, ही यूजली टेक्स हिज वाइफ, हेंस द ऑप्शन विल बी करेक्ट। वुड नहीं होगा मैडम, क्योंकि जीरो कंडीशन चला जाए। सी पार्ट में देखिए, अगला होता है शी विल कम टू वर्क दो ही डजंट रैन टुमारो। इसमें क्या होगा? दो नहीं होगा, यद्यपि डजंट रैन टुमारो। Until आ जाएगा सर। अनटिल जब तक के,
सी विल कम टू वर्क। अंटिल नहीं आएगा, कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इफ आएगा, इफ इफ सी होगा, विल कम टू वर्क। वो आएगी इफ इट इट डजंट रेन, इफ यदि आएगा, बारिश कल नहीं होती है। इफ आएगा इफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अंटिल नहीं आएगा। इफ आएगा, यहाँ इफ आएगा इफ। इफ इट इज। इफ आएगा भैया। या आप यहाँ इफ करिए, या आप यहाँ वो कर सकते हैं, क्या नाम है, अनलेस भी कर सकते हैं। अनलेस करेंगे तो डजंट की कोई नीड नहीं रहेगी। ठीक। इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड, वी वुड हैव वन। बीइंग नहीं होना चाहिए क्या, बीन होना, बीइंग का नहीं सेंस कोई। सर एक क्या? बार फिफ्थ वाला फिर से बता दीजिए। क्या इसमें नहीं समझ में आया है भाई? कंडीशन सेंटेंस देंगे, दो का तो कोई सेंस निकलता नहीं, दो का मतलब यद्यप। हाँ जी सर, आ गया समझ। सर पढ़ लिया आप सर। ठीक है सर। इसमें क्या होगा, इसमें इफ सो मेनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड होता है, वी वुड हैव। बाकी ये तो सही है, ये सही है, ये भी सही है। बीइंग है, बीइंग का नहीं होगा, बीन होगा। क्यों? सुन रहे हैं आप लोग? इसमें जवाब देते रहिए भाई। जी सर। नो सूनर आ गया है। सर देन, देन की जगह पे देन हो जाएगा। वैन की जगह पर बहुत देन हो बढ़िया, जाएगी। नो सूनर। हाँ, नो सूनर जो ही आए तो समझ लो कि यही, हार्डली स्कार्सली देन देन। हाँ यही इनकी प्रॉब्लम होती है जनरली, पकड़ सकते हैं। इंटरिंग द हॉल, द शो हैड स्टार्टेड, द शो हैड स्टार्टेड। इंटरिंग में दिक्कत, इंटरिंग तो नहीं होता है ना, इंटरिंग नहीं होगा। इसके पहले जो है कंडीशनल क्लॉज हमको देनी पड़ी। व्हेन इंटर्ड द कर सकते हैं, या व्हेन दे इंटर्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं। When he entered the hall, the show had started. इंटर्ड द हॉल, सो हैड स्टार्टेड, किसमें आ जाएगा? सी प्रॉब्लम। जी, आवाज आ रही है हमारी? जी सर आ गई। चलिए। Unless you did not do your homework, you will punish। नोट नहीं आ रहा सर। सर अनलेस के साथ नॉट नहीं आता है। डबल नेगेटिव हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। डू नॉट हटा दीजिए, सही हो जाएगा ना। डिड नॉट हटा दीजिए, बी पार्ट में लिख। इफ आई न्यू अबाउट हिम बिफोर आई विल हैव कमेंटेड हिम, इफ आई न्यू है, गुड हो जाएगा, गुड वुड हो न्यू है जाएगा। ना। सही बात, न्यू है तो यहाँ पर जो है विल का वुड कर दें। डी पार्ट में हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच। जरा देख जरा इस सेंटेंस को, क्वेश्चन नंबर 10 को सर आप देखिए। इफ आई न्यू अबाउट हिम बिफोर आई विल हैव। अब अगर आप आई वुड हैव कर रहे हैं सर, तो यहाँ हैड होना चाहिए। इफ आई हैड नॉन अबाउट हिम होना चाहिए। हैड नोन क्यों होगा सर? जब इधर पास्ट होती है, हाँ उधर तो जो है इधर वुड गुड हो जाता मेन है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है आई के Would किया अकॉर्डिंग। है ना, ये तो इसको विल हैव को तो रिमूव किया है ना आपने। तो रिकमेंड होगा यहाँ पर, ये सही है।
रिकमेंडेड नहीं recommend रिकमेंड होगा। हाँ अब हुआ ना सही सर? अब सही होगा, ये सही। हम सोच रहे थे कि हैव जो है फर्स्ट फॉर्म है। अब तो ये जो है दो जगह पे दिक्कत आ जाएगी, इसमें भी आ जाएगी। ये रिकमेंड करना पड़ेगा, शुड और हैव भी हटाना पड़ेगा। अब सही हुआ ये। Having just taken a heavy lunch. टेकिंग He नहीं was होगा, not टेकन ready होगा, to. टेकन होगा, Having टेकन। just ये ऑप्शन taken. सही बात है, ये पता टेकन करना पड़ेगा। किस पार्ट में? ए पार्ट में। She will rest for some time when we will reach the top. वैन भी रीच होगा, प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट। बेल हटाइए सर यहाँ से, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। कंडीशनल सेंटेंस में वैसे भी बिल को हटा will दीजिए। नहीं आता। एक प्रेजेंट में होगा, दूसरा फ्यूचर में जाएगा। इसमें सही है यहाँ पे सर। हाँ, क्या बता रहे हो? सही है सर। आप बोल देते हैं पहले और माइक ऑन करते हैं बाद में, तो आधी बात वहीं रह जाती है, आधी यहाँ तक पहुंचती है। पूरे में माइक ऑन करा। शायद नेटवर्क इशू है कुछ आपके यहाँ। वी विल हैव टू वॉक नाउ सिंस वी हैड मिस्ड द बस। वी विल हैव सिंस वी हैड मिस्ड। इसमें क्या होगा? सिंस है एक तरफ, जब तक की मिस्ड। हेड को रिमूव करिए सर यहाँ से। अब हमें चलना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। सिंस भी मिस्ड द बस। नहीं तो वहां पर जो है पास्ट फिर कैसे कर देंगे? अगर हैड तो यहाँ पर कर देंगे, लेकिन मिस्ड है और यहाँ पर जो है फ्यूचर दिया हुआ है, फ्यूचर पास्ट होता है ना प्रेजेंट सर? देना पड़ेगा। फ्यूचर पास्ट का फ्यूचर पास्ट होता है, फ्यूचर पास्ट तो नहीं होता, प्रेजेंट फ्यूचर होता है ना। हाँ, प्रेजेंट फ्यूचर होता है। तो यहाँ फिर क्या होना यहाँ पर चाहिए जो है सर? अब ये फिर दिक्कत इधर भी मिस में भी आ जाएगी ना। मिस करना चाहिए इसको। हालांकि नहीं, एक कॉन्सेप्ट जो है हमको बस तो इनसे छूट गई ना सर। एक्शन कंप्लीट हुआ ना, पास्ट सही है, बस छूट ये गई ना। सेंस आधारित है, ये मिस्ट सही है, सही। नहीं सर, वही जैसे तो मैं सिंस लगा हुआ है ना सर, सिंस का एक स्ट्रक्चर होता है ना सर। पास्ट इंडेफिनिट ही Past और लेगा सिंस। हाँ सर, वो सिंस सिंस पास्ट के इंडेफिनिट ही लेता है। जी प्रेजेंट परफेक्ट का और पास्ट का कॉम्बिनेशन भी चलता है। ये सही हाँ, है। सही हेड है। हटा दीजिए सर यहाँ से। प्रेजेंट और पास्ट चलता है। आई हैव नॉट सीन सिंस ही लेफ्ट। मैंने उसे नहीं देखा जब से वो गया। ठीक, आ गया आ गया। If the growth of population had been controlled earlier, mankind wouldn't live would in not a have lived. wouldn't Have live lived. लिखा है। wouldn't है ना सर, तो have भी तो आएगा ना फिर से। ये है आएगा सही। किसमें आई गई प्रॉब्लम? ए पार्ट में ए में। द लिटिल बॉय वाज सो बिजी प्लेइंग विथ हिज टॉय ट्रेन दैट ही डू नॉट इवन लुक अप एट बस। बिजी था, नहीं देख पाया। देखो यहाँ पे क्या है, टेंस पकड़ो। ये वाज की बात करना, यहाँ पे भाई साहब ने टू दे दिया है प्रेजेंट का। पास्ट में जाएगा।
पास्ट ही कर दे, मान लो सही हो जाएगा। इसको डिड कर दिया जाए, Did not. डिड नॉट कर दिया जाए, सही हो जाएगा। पास्ट पार्ट किसमें आ गई दिक्कत? बी पार्ट। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, वुड करना पड़ेगा इसको। Would have lost our lives. ठीक है, किसमें आ गया? सी पार्ट में, डी में डी होगा पार्ट सर। में। डी में नो सूनर आ गए भाई साहब, यहाँ पे देखिए वही दिक्कत दिए होंगे नो सूनर वाले। ए पार्ट में। इसमें अध्ययन हो जाएगा। किसमें आ गया? ए पार्ट में। When the boys were playing the match, when the boys were playing the match, it suddenly start raining. किसी के सर माइक ऑन है सर? हाँ, हम आवाज आ बच्चों रही के है। साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते पढ़ाई हो रही, दोनों काम हो रहे। हाँ, दोनों काम हो भारतीय रहे जो है हैं। दोनों काम कर रहे हैं। अगला है क्या है? When the boys were playing the match, it suddenly देखिए स्टार्ट से यहाँ पर प्रेजेंट दे दिया है, यहाँ पर है क्या? पास्ट। स्टार्टेड कर किया जाए, क्यों? स्टार्टेड किया जाना चाहिए। जी। Started. इसमें आ गया बी बी पार्ट में। इफ इंडिया बिल यहीं पकड़ लिए होंगे तुरंत। विल नहीं बिल आएगा। नहीं आएगा, बिल समय बिल आएगा ही नहीं। बिल, अच्छा यहाँ विंस होगा कि विन ही रहेगा? विंस होना चाहिए ना सर। देखिएगा ये कॉन्सेप्ट, जब इंडिया टीम के रूप में आएगा तो प्लूरल वर्ब लेता है। तो टीम के रूप में आएगा तो सिंगुलर नहीं लेगा क्या? जब इंडियन में टीम आएगा की बात सिंगुलर आएगी, होगा। वो तो जब टीम की बात करेंगे आप तो ग्रुप हो जाता है। मैं बिल्कुल अभी श्योर नहीं हूँ इस नियम को, देखिएगा आप लोग। ये जो है लेता है सिर्फ प्लूरल, कहीं पे रूल मुझे मिला था, याद नहीं आ रहा मुझे। जब इंडियन टीम की बात आ जाएगी, मतलब कोई प्लेयर है, प्लेयर की जो टीम होगी तब तो ग्रुप हो गया, एक हमारी कलेक्टिव नाउन हो गई, तब तो सिमिलर वर्ब लेती ही लेगी। लेकिन जो इंडिया टीम के पहले अगर इंडिया लग गया तो प्लूरल लेता है, ऐसा कोई रूल है? मुझे इस समय याद नहीं है, देखिए। रूल है। इंडिया हैज वॉन द मैच, इंडिया हैज वॉन द सही मैच। बात है। हाँ, तो ये जो है ये प्लूरल ही लेगा। यहाँ पे होल कंट्री जो इंडिया के प्लेयर हैं वो सारे कंट्री को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत सही, बहुत इसलिए सही, बहुत इंडिया सही, आपने समर्थन कर दिया। ये जो है धन्यवाद सर। विन सही है। किसमें आ जाएगा? सी पार्ट में। तो प्लूरल पर आई। हाँ, यहाँ प्लूरल आएगी, केवल इंडिया प्लूरल आएगी। इंडियन टीम हो जाएगा, इंडियन टीम हो जाएगा तो एक ग्रुप हो जाएगा, समूह हो जाएगा, तब सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। टीम आ जाएगा इसलिए। नाउन, हाँ कलेक्टिव नाउन के साथ आगे सिंगुलर आएगा। ना देव जो है टीम को संबोधित कर रहा है इसमें। अब वैसे भी इंडिया जो कटेगा सर यहाँ। सुमित जी आपकी आवाज बढ़िया पहुंच नहीं पा रही, बड़े ही अच्छी बात आप बता रहे हैं, शायद हम सुन नहीं पा रहे, नेटवर्क में क्या है बताइएगा। इफ आई ज्वाइन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, इफ आई ज्वाइन प्रेजेंट आ गया तो उधर क्या होना चाहिए? फ्यूचर। क्यों? तो इसमें वुड नहीं हो जाएगा? आई वुड गेटिंग अ गुड डील। वुड If I कैसे होगा? join- वुड तब होता जब इधर पास्ट विल होता। होगा, विल होगा, विल। इधर अगर ज्वाइंट होता आई तब उधर शेल हो कर जाएगा सकते थे सर, आप। शेल आई के साथ शेल हो जाएगा यहाँ पर। शेल शैल गेट। गेट, शैल गेटिंग क्या करेंगे?
हाँ जी, गेट। सहल के साथ गेट आएगा सी पार्ट में। राकेश वाज स्टडीड व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड हिम। पास्ट की जब दो साइमल्टेनियस वर्क हो रहे हों क्या होता है? एक कंटिन्यूअस होगा, एक परफेक्ट पास्ट इंडेफिनिट में होगा। क्यों? ऐसा तो होता है। जी जी जी, यही होता है। हाँ, तो इसको जो है स्टडीइंग करना पड़ेगा इसको। हाँ, राकेश वाज स्टडीइंग व्हेन ही हिज फ्रेंड्स कॉल्ड हिम। सही है, सही होगा। रागी अध्ययन कर रहा था जब उसके मित्र ने बुलाया। सही। हैड रंजनी नॉट टेकन, वुड हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए उधर दूसरी तरफ। डेफिनेटली मिस लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, मिस्ड होना चाहिए। क्यों? मिस्ड, सुन रहे हैं? यस सर, यस सर, सही कह रहे। ठीक। बोलते इसलिए रहना आपका जरूरी है, कभी कभी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो पता चला कि उस दिन मैडम पूरे क्वेश्चन पढ़ा डाले और डिस्कनेक्ट हो गया मामला, तो इसलिए सर मैं तो कर बोल दिया। दूंगा, सिग्नल प्रॉब्लम कर रही सर मुझे। नहीं, आप बोलते रहिए, वो प्रॉब्लम कर रही है, कोई बात नहीं है, समझ नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये जान जाएंगे कोई बोल रहा है। ठीक है, बोलते रहिए। लेट्स कंटिन्यू। ओके। इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स, एग्जिस्टेड देखिए पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वुड प्लस मेन वर्ब की थर्ड में वुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए उधर, है ना? तो इट इज दिया है इन्होंने, ये गड़बड़ है मामला, वुड आना चाहिए, वुड इज नहीं आएगा। लाइकली टू बी तो खैर इन्फिनिटिव है, सही है। किस पार्ट में आ गई दिक्कत? हाँ, सही है आपका। सही। हैविंग वर्कड द होल, आगे क्या चीज हो जाएगी? यू के साथ सैल थोड़ी आता है। यू के साथ सैल नहीं आएगा, क्या आएगा? विल हो देखो जाएगा उड सर। कर सकते थे, या शुड कर देंगे यहाँ पर। वुड आ जाएगा सर, पास्ट में तो वुड आ जाएगा, पास्ट में ना सर वुड आ जाएगा। वुड भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है शुड नहीं हो सकता क्या? यू शुड हैव मेरे अकॉर्डिंग सम रेस्ट। शुड सही हो रहा है, शुड सही हो रहा है सर। शुड हो सकता है, शुड हो सकता है, शुड हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ज्यादा दिखा रहा ना वो शुड। हाँ, चाहिए कैसे कुछ चीजें ऐसे हैं जहाँ पर रूल वायलेट होते हैं, हमको जो है एक्सेप्शन के रूप में उन क्वेश्चन को एज इट इज दिमाग में बैठाना पड़ेगा। वो क्वेश्चन आ जाते हैं फिर दिमाग खराब कर देते हैं। If children are treating with respect, they will accordingly। पैसिव है तो फिर ट्रीटिंग नहीं आने चाहिए, ट्रीटेड होना चाहिए। क्यों? If children are treated with respect, they will behave accordingly। यदि बच्चों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए तो वो भी जो है उसी के अनुसार अच्छा व्यवहार करेंगे। सर ट्रीटेड होगा कि ट्रीट होगा? इफ चिल्ड्रन ट्रीट विद रिस्पेक्ट, अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली। अगर इसको जो है ट्रीट करेंगे तो यदि चिल्ड्रन अच्छा व्यवहार करते हैं, ये सेंस निकल जाएगा। अच्छा, आर है, जी सर, आर के साथ पैसिव देना पड़ेगा, पैसिव वॉइस पैसिव देना पड़ेगा। इसमें किसमें आ गया? बी पार्ट में आ गया। चलिए, आप सब लोगों के सहयोग से आज का टास्क पूरा हुआ। मिलते हैं
शाम को। आज लंबा टास्क है, टाइम से जुड़ जाइएगा सब लोग। 7:15 पे 250 क्वेश्चन, सॉरी 225 क्वेश्चन करने हैं आज, है ना। 225 क्वेश्चन टाइमली 7:15 पे मिलेंगे। आज की जंग नए टेस्ट सीरीज की आज से स्टार्ट। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं सर प्लेटफॉर्म जी। प्लेटफॉर्म सामान को लोग खा ले किस प्लेटफॉर्म क्या पे कह रहे हैं होगा? मैडम? प्लेटफॉर्म कौन आप सा पेड से प्लेटफॉर्म जुड़ी है पे ना है हमसे? सर? हाँ सर, अभी इस बार तो बात पेड से जुड़ी है तो आपको तो ग्रुप पे तो आपको भेजा है हमने लिंक ना, उस पे जुड़िए टीचमेंट पे। सर 3 टेस्ट क्लासरूम की लिंक हमने भेज दी। सर टेस्ट मिलेगा? अच्छा जी जी, वो टेस्ट सीरीज पेड वालों के लिए मैडम है, जो लोग पेड अच्छा, हैं हम पहले से उनके लिए। अच्छा अभी है नहीं, हम लोगों के लिए नहीं है अभी। अभी आप लोगों के लिए मिलेगा। अभी तो एक पे टेस्ट दिया है हमने आपको। अभी जल्दी हिस्ट्री खत्म करिए, फिर हिस्ट्री पे टेस्ट करवाते हैं कम से कम 150 क्वेश्चन का। आप लोग जिस प्रोसेस से जुड़े हैं उसी प्रोसेस से चलते रहेंगे हम लोग। जो टॉपिक खत्म करेंगे, ये 25 क्वेश्चन जो करा रहे हैं आप ही लोगों के तो करा रहे हैं, ये उनको थोड़ी करा रहे हैं, ये पेड वालों को नहीं करा रहे। जुड़ जाए और ले लें, अलग की बात। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड डे। थैंक यू।